Hello, good people. Welcome to another episode of Preparation Parlor. If my memory serves me well, this should be 15th. Okay, first question that lots of people have sent over in different wordings. Scores are not consistent. Sometimes I get 35 in VRC, sometimes I get 12, sometimes I get 28 in DILR, sometimes I get 11, sometimes I get this, sometimes I get that. Okay. So their question is not just, okay, this is, I'm inconsistent in my scores. The question follows up with how do you guarantee or how do you ensure that this inconsistency doesn't happen and we get uh, equated marks everyone, not exactly equal, but somewhere in the same range. One, there is no way to guarantee that. Second, don't you think you are focusing on the result more than the input? ये समझो, different tests have different difficulty levels, yes, and depending upon your practice spectrum, depending upon your practice spectrum, say if a set appears in an exam that you have previously seen, of course your likelihood of being able to solve that set is going to be higher. And if all the sets, or let's say majority of the sets that appear in the exam are of questions that you have never seen earlier and you are unfamiliar with the recording styles, then of course your score is going to be lower. स्कोर बढ़ गया या स्कोर घट गया उससे लोड लेने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. द मार्क्स दैट यू गेट इन अ मॉक्स are not an indication of whether you are well prepared or not well prepared. Scores in the test are simply an indication of उस टेस्ट में आपका क्या रहा. Now, let's say you end up scoring very very well in one test and you end up scoring very poorly in another test. People don't get into the nuances and nitty-gritties of why that difference is happening. What was the degree of familiarity you had in the test that you ended up doing extremely well in? For instance, if you go back and see one of the popular top 3 mock institutes or one of the top 3 CAT prep institutes, उनके मॉक्स में ना DILR के सेट बहुत रिपीट होते हैं. तो उनके टेस्ट में DILR के सेक्शन में पीपल आर इजीली स्कोरिंग 40 प्लस. वही सम अदर इंस्टीट्यूट के मॉक पेपर में they try to twist and turn past CAT sets in such a way that it becomes nonsensical. उनके टेस्ट में scoring 20 is considered amazing. You go to some other test series का mock, the third one, tests are nice, awesome, but unfortunately see CAT के अंदर, I'm specifically talking about DILR right now. DILR के अंदर ना CAT, how it frames the sets or gives it to you is there will always be at least one set that is absolutely easy, straightforward आसान वाला रहेगा, in which if you invest 10-12 minutes, even if you're slow and your recording style is all over the place, one set will definitely get across. Then second set is also going to be simple, but it will have some degree of interpretation. Third set is going to be more challenging, but still solvable by a fairly well prepared candidate. Fourth set will only be attempted by geniuses. So CAT has clearly demarcated, differentiated difficulty levels within the sets. Unfortunately, when it comes to mocks are not necessarily designed in that way. Sometimes the mocks are designed with the intent of making you select sets. So out of 4, 3 are extremely difficult, 1 is very easy. And in case you end up messing up by not identifying that set, you end up spending time on the remaining 3, you end up scoring poorly. Chalta hai, not a problem. Or let's say in English, नहीं अभी DILR का ही काम खत्म करते हैं. So your score becomes bad. ये इस बात का दुख मत बनाओ कि भाई स्कोर कम आया, इस बात का बिल्कुल दुख मत बनाओ, क्योंकि स्कोर ज्यादा लाना ऑब्जेक्टिव हुई. सी the question that is posed in its current frame, you are asking इनपुट पे तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम्हारा फोकस आउटपुट पे. मेरे नंबर नहीं आ रहे, वो नंबर को कैसे कंसिस्टेंट करें, कर ही नहीं सकते. The only thing that is within your control is your effort. The outcome that you have is not within your control. You cannot have any degree of control over what percentile you end up getting, what score you end up getting. Test के दौरान just go back and see if the decision making that you engaged in was appropriate. देखना, usually in a lot of tests in which the first set in the DILR section is easy, उसके अंदर लोगों के बहुत स्कोर आता है. And in those tests जिसके अंदर first set in the DILR section is difficult, उसके अंदर लोगों का स्कोर काफी गिर जाता है. It has
which is a clear indication people are not engaging in selection process at the time of attempting the sets. और पंगा ये रहता पता है, ये ज्यादा फन चीज, I'm talking in terms of generalities. Everything that I say is not applicable on everyone. And because of that, जनता घूम फिर मेरे केस में मैं तो हमेशा क्वेश्चन सिलेक्शन करता ही हूँ, फिर भी छूट जाता है। हाँ भाई, फिर भी और वेरिएशन रहती है। लेट्स से I for instance, I'm not very comfortable with calculation intensive questions. मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पसंद है कैलकुलेशन। IFT में करना ही है तो करना ही है। कैट वाले के अंदर usually my preference is if I can do something logical reasoning based, थोड़ा सा इधर उधर फिटिंग करके नया रिकॉर्डिंग स्टाइल पकड़ के कुछ कुछ करके काम चल जाए, आई वुड प्रेफर दोस क्वेश्चंस। अब डीआई मेरे को उतना पसंद नहीं है। लेट्स से इन अ टेस्ट yesterday I was doing CAT 2021 का DILR, उसके अंदर एक ग्राफ वाला सेट था जिसके अंदर नंबर वंबर लिखने थे। लाइट सा ही सेट था, सब कुछ अच्छा था, बट इट वाज डेफिनेटली द थर्ड सेट दैट आई पिक्ड अप, नॉट द फर्स्ट, नॉट द सेकंड। बट दुनिया चिल्ला रही है उसको फर्स्ट और सेकंड ही उठाना चाहिए था क्योंकि दैट वाज सो सिंपल। yes, it was simple, but it was also down to my own biases. I don't want to pick it, I don't want to pick up a set जिसमें मेरे को बहुत लिखना पड़े, as in at least numbers लिखने पड़े, फिर addition, subtraction, multiplication, division, ये सब का टाइप का काम करना पड़े। So it always boils down to your own biases. आफ्टर द टेस्ट, अच्छा ये समझो, दूसरे टर्म्स में समझना हाउ यू कैन पॉजिटिवली स्पिन दिस। इन केस यू आर फेयरली वेल प्रिपेयर्ड इन योर, अच्छा फेयरली वेल प्रिपेयर्ड का मतलब ये मत समझना कि हमने सारी क्लासेस कर ली हैं और हमने अपना सारा होमवर्क का शीट कर लिया है क्लासेस का। आई वर्कड एट 2 institutes prior to starting with our online thing, and I for one can guarantee in the 2 institutes that I was working at, even if somebody had done all the class sheets, that is in no way preparing you for CAT का पेपर। क्योंकि CAT का पेपर क्लास शीट्स के अंदर, DILR के अंदर स्पेशली, there is the basic fundamental which gets covered in class, then there is application which rarely ever gets covered in class. In fact, at most places, the 2 institutes that I worked at and most other places, whatever is done in classroom environment, especially for DILR, is just the basic stuff. उसके ऊपर higher level application is kind of ignored because it is difficult to teach and finding appropriate people for that is difficult. हमारे वाले जगहों पे भी when I wanted to do extra sets and everything, I was told no, because if you do it, other teachers will have to do it, and other teachers don't want to do it, तो बहुत जिंदगी में दिक्कतें थी। Anyway, तो अब ये समझिएगा, just because you have completed class sheets or you have attended classes, DILR is not khatam. After that, you must have gone through at least 300-400 sets, and when I say 300-400 sets, I mean तुमने खुद से अटेम्प्ट किया होना चाहिए और तुमने खुद से रिकॉर्डिंग की हुई होनी चाहिए। आउट ऑफ दोस 300-400 सेट्स दैट यू अटेम्प्ट, एटलीस्ट 60-70% ऑफ देम के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण होगा कि हाँ भाई मेरे को आता पक्के से, हम खुद से कर सकते हैं, और बाकी छूट जाएगा। देन यू से DILR मैंने बहुत कर रखा है प्रैक्टिस, अब नहीं आ रहा, देन आई एम विलिंग टू लिसन। बट फॉर मोस्ट पीपल राइट नाउ, आई हैव गॉन थ्रू ऑल कॉन्सेप्ट्स, मींस सम रैंडम वीडियो देख रखी है आपने अरिथमेटिक की और आप सोच रहे हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए। नहीं हो रहा, मतलब भाई there are so many different ideas. So acha, in other words, I don't think I have reached a point where I feel my concepts or syllabus or everything is complete right now. तो फर्स्ट टाइम प्रेप करने वाले लोग जब बोलते हैं ना मेरा सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए, मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया, फिर लगता है भाई साहब अलग ही लेवल पे हम यूजलेस हो रहे हैं लाइफ में। there are lots of things that we have to study. If at all you feel you've done adequate practice, and adequate practice matlab, and this number hasn't changed from the initial days, 400 RCs outside of class sheets, 400 DILR sets outside of class sheets, outside of mock tests, outside of class sheets, ये प्रैक्टिस के लिए, प्योर प्रैक्टिस के लिए। क्वांट के अंदर यू डन अपवर्ड्स ऑफ 3000 समथिंग क्वेश्चंस, तब जाके इफ यू क्लेम कि हाँ भाई अब दिक्कत आ रही है तो सुनने, then the problem is reasonable or there is some investigation to happen. But the count of people who come up with the problem, मेरा स्कोर इनकंसिस्टेंट चल रहा है, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। देख भाई, एक एक तो लग जाओ प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत सारा, दूसरा काम आउटकम कंट्रोल में नहीं है, इनपुट कंट्रोल में। आफ्टर द टेस्ट टेक अ पॉजिटिव स्पिन ऑन इट। तुमसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अच्छी बात है, ये मॉक में आ गया, एक्चुअल कैट में नहीं है, क्योंकि अब तुम इससे सीख सकते हो, एंड इफ इन फ्यूचर इफ इट एवर कम्स अप
you would be able to solve such questions. Hopefully you would be able to solve such questions. जो लोग, अच्छा, everyone who says scores are not being consistent and how do they ensure, how to ensure they remain so, DILR स्पेशली अभी बात कर रहे हैं. DILR का समझना, every mock or every sectional that you've taken so far in prep for this year, if I ask you to solve one of those sets all over again, would you be able to solve it right now? Some mock that you had taken back in June, उसके sets अभी हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं. अगर नहीं हो पाएंगे, we were only cherry picking sets that we were comfortable in, then properly you would know where the problem lies. We are only looking at जो set हमसे हो जा रहा है वो तो अच्छा है, जो set हमसे नहीं हो रहा है ये तो बहुत difficult है, हम नहीं करेंगे. And then when that set in a different form appears in front of you again, it looks like a different beast, but it is testing you on the same front. Small little ideas like always check at extremes escapes people so many times. Yeah, if you feel like there are thousands of cases, banao thousands of cases, and then once you start making cases, you would realize thousands of cases नहीं है, उससे कम पे काम चल जाएगा. Please, people, scores not being consistent, how to ensure they remain so? While I empathize, I am definitely saying there is no solution to it. And any, मतलब देखो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा लाइफ में, जिंदगी बना लोगे तुम, नहीं तुमसे हो सकता है, ये तो टेस्ट ही बेकार हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है. आई कैन नॉट गो ऑन दैट एक्सट्रीम्स कि भाई टेस्ट बेकार है ना, आई कैन नॉट गो ऑन द एक्सट्रीम कि तुम बेकार हो. दोनों हालत नहीं हो रही है. द ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन. The truth is somewhere in between, and given the human race, the truth is closer to अपना talent. टेस्ट में भी दिक्कतें हैं, देयर आर टेस्ट जिनके अंदर दिक्कतें हैं. मतलब ये समझो किसी भी मॉक के अंदर, किसी भी टेस्ट के अंदर, इफ लेट्स से 5% of the population is unable to solve 3 DILR sets, तो फिर टेस्ट इज वियर्ड, बहुत ज्यादा टफ है. 5% of the people should be able to solve 3 sets because उतना निकल जा, उतना मतलब given that this is the serious pool of aspirants, 2 लाख में से 5%, let's say 13,000 आपका नंबर लिया, उसका 5% कितना हो जाएगा? 650 लोग. हाँ 650 लोग हो जाएगा. 650 लोग कैट के अंदर इज 99 पॉइंट समथिंग रेंज, 3 सेट वो लोग मारते हैं, तो भाई चलता है. अच्छा, 13,000 भी काफी हाई नंबर ही ले लिया. अब तो मॉक टेस्ट टेकिंग, स्कोर कंसिस्टेंट नहीं होना चलता है, बस लगे रहो. देर इज नो अदर, मतलब हम क्या बताएं. आई डोंट हैव मैजिक आंसर्स टू क्वेश्चंस. ऐसा कर लो अगली बार से स्कोर कंसिस्टेंट रहे, कुछ नहीं होता. टेस्ट दो, टेस्ट एनालाइज करो, ensure that you carry forward learnings from one test to the other. Do not fall into the trap of let me take 50,000 tests because लोग कहते हैं कि मॉक देने से फायदा होता है. लोग उसके बाद ये भी लाइन कहते हैं अगर एनालाइज नहीं किया तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं है. वो लाइन मस्त इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वी ओनली वांट टू लिसन टू थिंग्स दैट वी फाइंड फन. मॉक टेस्ट रैंडमली देने का कोई पॉइंट नहीं. शांति से पढ़ो, कोई लोड नहीं है. अच्छा, अभी DILR की बात करी. VARC के अंदर समझना ज्यादा फन काम रहता है. VARC में ना जिनका वेरिएशन आ रहा है ऊपर नीचे, फिर से एक, व्हाट इज द डिग्री ऑफ प्रैक्टिस दैट यू डन आउटसाइड ऑफ क्लास शीट्स. हाउ मेनी RCs हैव यू प्रैक्टिस्ड, हाउ मेनी पैराजंबल्स, odd one out, ये you have practiced. If the number is not 400 RC passages outside of class sheets and 200 200 200 for odd one out, parajumbles and summary, तब फिर ना आगे नहीं सुन रहे, इससे ज्यादा नहीं काम, मतलब सुनने का कोई पॉइंट ही नहीं है बिकॉज देयर हैज बीन अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू टू क्लेम. एंड व्हाई वी आर गेटिंग देयर इज, देखो मेजॉरिटी ऑफ अस डू इंग्लिश बेस्ड ऑन फील. ये सही लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है क्योंकि अपना लैंग्वेज स्किल अच्छा है. कुछ लोगों का शानदार अच्छा है, जिन लोगों का अच्छा उनको दिक्कत नहीं होती, जिन लोगों का अच्छा नहीं है ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है. आई एम नॉट सेइंग आइडियली दैट शुड नॉट हैपन. यू शुड बी डूइंग इट बेस्ड ऑन लॉजिक कि ये रीजनिंग है, ये इन्फरेंस है, ये है, वो है. बिल्कुल अगर टेक्निकल आता है तो करो. पंगा ये है, इट इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट गो देयर. बट इफ यू डोंट गो देयर, द अल्टरनेटिव इज अपने इंट्यूशन को इतना ट्रेन करना है दैट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू एंड अप पिकिंग द राइट आंसर एंड यू आर रीजनिंग आउट विद द ऑप्शंस. अगर वो रीजनिंग आउट विद द ऑप्शंस नहीं कर रहे, ये अच्छा लग रहा है यही होगा चलो मार देते हैं, या पहले ऑप्शन को देखा ये बुरा है इसको काटो, दूसरा बुरा है काटो, तीसरा बुरा है काटो, चौथा बुरा है काटो, फिर भाई सारे ऑप्शन ही कट गए. ऑफ कोर्स दैट इज नॉनसेंसिकल, दैट इज नॉट लॉजिकल, दैट इज अगेन
for a lot of people, despite me claiming right from the beginning of the year within my course itself, we reach our answer by elimination. The answer of elimination is reached this way. ऑप्शन बी सही लग रहा है तो ए सी डी में ये दिक्कत है. तो भाई इज्जत से तुमने एलिमिनेट नहीं किया, तुमने सेलेक्ट ही किया है. यू हैव सेलेक्टेड बी ओनली. ए और बी के बीच फाइट करा, उसमें से जो सरवाइव करता है उसका बी और सी में फाइट करो, उसमें से जो सरवाइव करता है उसका आखिरी दो में फाइट कराओ, उसमें से जो सरवाइव करता है. That may not necessarily be the perfect answer to the question that is posed, but it has to be the best answer among the four answer choices. There has to be a death match that happens. Okay. क्वांट के अंदर स्कोर्स आर नॉट कंसिस्टेंट वाले लोग कम रहते हैं. इट इज पीपल यूजुअली हैव, मेरे को याद नहीं रहते क्वेश्चंस, मेरे को याद नहीं रहते क्वेश्चंस, या लेटर ऑन आई एम एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस. सिंपल एडवाइस है भाई, गो फॉर द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स. In fact, the third question is more along the lines of quant only. So I will talk of that when the third question comes around. Let me talk of the second question right now. What is the correlation between mock percentiles and actual CAT percentiles? I am consistently scoring in the range of 97 to 99.6 in mocks. So what can I expect in CAT? पहले तो congrats for the score that you are getting in mocks, and काफी sly way of humble brag, 97 to 99.6. अच्छी बात है. देख, I perhaps for the first time in any video I'm going to give a prediction for what percentile you will get in CAT. It will be somewhere between 0 and 100. भाई क्या बकवास कर रहे हैं यार तुम. बेसिकली ये बोल रहे, क्रिकेट में मेरा एवरेज है 42.53, तो अगले मैच में हम कितना स्कोर करेंगे इसका प्रिडिक्शन करो. नहीं पता, बिकॉज उस दिन क्या क्वेश्चन रहेंगे, कौन सा मतलब किस टाइप की पिच रहेगी, किस टाइप का बॉलर रहेगा, किस टाइप के मूड में तुम रहोगे, क्या हालत रहेगी. सी, it is expected, the expected value we can talk of as in expected value probability wala. If you're doing 97 to 99.6 and you maintain the temperament, if you maintain the temperament in the actual CAT exam, this percentile should ideally go up, because there are a lot of nonsense CAT test takers who would appear in the paper along with you. Abhi, if you can go to several groups, I am selling my mocks, I'm selling my tests for this 45 unused, this CAT, that CAT paper जो लोग बेच रहे हैं. These people are the best people in the world because they are going to appear for CAT nonetheless. These people are there to push our percentiles up. So if you maintain the temperament, ideally you will go up. But then that is not a guarantee. Right now, see, if you're in every mock you scored 97 to 99.6, excellent work you've done so far. Excellent work you've done so far. Whatever you've been doing, keep doing it. What will you get in CAT? You will see. अभी तुम जान के भी क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन या नॉन एक्सपेक्टेशन. The only decision making you have to make right now is कि SP Gen में अप्लाई करना है कि नहीं, depending on your past acats. Beyond that, there is no point behind this. And correlation between mock percentiles and actual CAT percentiles, इसका ये समझना ना दुख क्या है. There can be a correlation identified. Let's say 0.73, 0.73 ये काफी लो हो गया. Let's say 0.82, ऐसा हालत है. मॉक परसेंटाइल और एक्चुअल कैट परसेंटाइल हाउ क्लोज दे आर. बट पंगा ये पता है, यू डोंट केयर फॉर एवरेज रिलेशन बिटवीन देम, यू केयर फॉर इंडिविजुअल डेटा वेरिएशन. तो एक इंडिविजुअल डेटा कितना ऊपर नीचे जाता है उसके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना. Let's see, if I tell you the average score of the students in my class in a test out of 100 is 95. इसका मतलब है क्लास के अंदर एक बच्चे ने लोएस्ट कितना स्कोर किया पता चलता है क्या? Average numbers don't represent every individual data point adequately, and for a candidate you only care for your individual data point. Correlation से क्या करना आपने? So all of this nonsense, I can only advise you, get rid of this stupid idea कि भाई कितना आएगा कितना नहीं आएगा. You've been doing well, so kudos on that. अगर score 97 to 99.6 आ रहा है, अच्छी बात है, it is excellent score. Make sure जो भी क्वेश्चंस, जो भी टेस्ट हमने दिए वो अच्छे से एनालाइज हो गए हैं, वो हमने बढ़िया से every question that I'm missing or every mistake that I'm making, I'm keeping a record of that. I'm ensuring that I'm learning from them, and the next time I get anything similar, I don't end up messing there. Do not rest on your laurels. Do not feel कि नहीं इतना रेंज में आ रहा है अब तो ठीक है चल रहा है. Whatever work you've been putting in so far, keep putting in that same amount of work. Keep at it. लगे रहो लगे रहो लगे रहो. That is the only advice. कितना स्कोर आएगा कितना स्कोर नहीं आएगा इज एन एब्सोल्यूट क्या होता है, एंडलेस पिट जिसके अंदर घुसोगे
क्योंकि अब ये भी बता रहा है अभी कैट होगा या जो भी एग्जाम्स एग्जाम्स होगा। अभी समझो 10 अक्टूबर को एनमैट चालू है ना, 10 अक्टूबर को देखना दुनिया कितना समय बर्बाद करेगी। एनमैट एनालिसिस, फर्स्ट डे टेकअवेज, एनमैट एक्सपीरियंस, ये वो फलाना ढिमकाना, विच इन नो वे हेल्प्स योर प्रेप, नॉट इवन रिमोटली। अगर आपने एनमैट का मॉक दे रखा है तो एनमैट के मॉक जैसा पेपर आएगा, जहां का भी मॉक हो फर्क नहीं पड़ता, एनमैट के मॉक जैसा पेपर आएगा। क्वांट के सवाल आएंगे, अंग्रेजी के सवाल आएंगे, रीजनिंग के सवाल आएंगे, आपको अटेम्प्ट करना है, आपको घर आना है, तुरंत तुरंत स्कोर भी दिखा देता है आजकल तो एनमैट में। लेकिन लोग बढ़िया वीडियो बनाएंगे, लोग बढ़िया वीडियो देखेंगे, बेस्ट थिंग इन द लाइफ है। अभी स्नैप आईएफटी के स्लॉट वाला बवाल चल रहा है, उस पर वीडियोस बन गई है बढ़िया बढ़िया। तो steer clear from those nonsensical drains of time. Keep doing what you're doing, and that is it. What can you expect in CAT? Nobody knows for certain. There have been people who scored 99.9 plus in mocks and ended up with 82 in CAT. There have been people who scored 73, 74 in mocks and have ended up with 98 or something in CAT. So the movement, individual data points, there have been drastic movements, but अपने को क्या करना उससे, अपना effort is in our control. Put in the effort, we'll see. Next question. Why are we able to solve most of the mock questions when we revisit, but fail to do so the first time? How do we capitalize on this? एक तो यू मतलब क्या बताएं, दो मुद्दे हैं, दो मुद्दे यहाँ पे जजमेंट कॉल ना बहुत सारे लोगों का बड़ा मिसप्लेस्ड है। व्हेन यू से कि फर्स्ट टाइम में ही देखा हमने, वो क्वेश्चन मॉक में नहीं हुआ लेकिन बाद में हमने देखा तो एकदम 30 सेकंड में मेरे से सॉल्व हो गया। तो मैं समझना, यू आर क्लेमिंग 30 सेकंड में सॉल्व हो गया, बट दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मिसगाइडेड। आपने मॉक में वो सवाल देखा था, आपने उसके बारे में वहां पे 5 बातें सोची थी, जिसके अंदर से आपने रियलाइज किया कि 2-3 बातें गलत है। फिर आपने टेस्ट के बाद भी उसके बारे में सोचा, जब उसका रिजल्ट निकला तब आप वापस से वो सवाल देख रहे हैं, इस बार आपसे सॉल्व हुआ है। सो क्यूमुलेटिव टाइम दैट यू इन्वेस्टेड इन दैट सेट नाउ इज अपवर्ड्स ऑफ 5-6 मिनट्स, अपवर्ड्स ऑफ 5-6 मिनट्स। लेकिन अपना दिमाग, बिकॉज वी वांट टू बिलीव इन द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, 30 सेकंड्स में हो तो गया भाई, 30 सेकंड में नहीं हुआ, पहले की बहुत सारी इन्फरेंसेस, बहुत सारे रिजल्ट तुम कर रहे हो। सो ये तो एक तो वहां का पंगा है। दूसरा, एक और टैलेंट बताते हैं होता क्या है। ऑफ कोर्स टाइम प्रेशर की बात है, व्हेन द मॉक इज गोइंग ऑन, उस टाइम पे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, बट ओवर द इयर्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊपर का टाइमर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊपर का टाइमर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊपर का टाइमर देखते हैं, और टाइमर जब तक चलता रहता है तब तक कोई मतलब जब तक टाइमर चल रहा है क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं रहता, स्टोरी लाइन ही बदल जाती है सब कुछ कि क्या, ओ माय गॉड 3 मिनट लग गए इस सवाल में, अभी तक मेरे से कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ काम डिमीनर, चल अगले पे चलते, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बाद में कर लेंगे, वी गेट इनटू पैनिक मोड, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर एक तो क्या बताएं, ऑब्जर्वेशन बायस आ जाता है। टॉपर्स का स्कोर जब देखते हैं तो लगता है कि भाई इतना तो आना चाहिए, दिस इज, सी टॉपर्स का स्कोर इज अ टॉपर का स्कोर फॉर अ रीजन। वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, तुम्हें टॉपर से कंपेयर ही नहीं करना, तुम्हें खुद से कंपेयर मारना। तुम अगर एक लेट्स से 22 क्वेश्चन पैट के क्वांट के मॉक में है, आप 8 सवाल कर पा रहे सामान्य, आप 8 सवाल करिए, 8 सवाल तो करिए। दिक्कत ये है हम 8 की जगह 20 अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उस 20 में से मेरे से होते 13 हैं, और क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर रहे थे 13 में से मेरे से 6 गलत हो गए, वो फिर क्या, फिर 7 सही और 6 गलत पे अपने पहुंच गए 15 नंबर पे। 8 कर लेते, 24 ही ठीक हो जाते यार मेरे। यू हैव टू read the question, you have to read the question very slowly, you have to decide whether this is within your range or outside of your range very quickly. Beyond that, invest time, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करो। एक और टैलेंट यहाँ पे, पोटेंशियल रीजन, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज योर टेस्ट टेकिंग प्रैक्टिस। कुछ लोगों का गेम रहता ना, एक टॉपिक उनको पसंद है, उन्होंने टॉपिक उठा लिया, मतलब एक क्वेश्चन उठा लिया, ये वाला टाइम एंड वर्क का, मेरे को टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा, ठीक है, टाइम वर्क करने लगे, और अपने से आंसर जो मेरा आया वो ऑप्शन में ही नहीं है। हम क्या गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे, क्या गलत कर रहे, क्या गलत कर रहे, जिंदगी तबाह हो गई, क्या गलत कर रहे खोजने में, पर हुआ ही नहीं, 5-6 मिनट डूब गए। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, ये तो मेरा स्ट्रेंथ टॉपिक था, कैसे नहीं हो रहा है। फिर हम लोग गए, छोड़ दिया। बाद में टेस्ट के बाद हमने फिर से वो सवाल उठाया, और उस टाइम पे वो सवाल फर्स्ट टाइम में हो गया। तो होपफुली यू कैन सी दो टाइप का बायसेस, एक
जो तुमने पहले 6-7 मिनट इन्वेस्ट किए थे उसके चक्कर में काफी कुछ पता है इस सेट के इस सवाल के बारे में। दूसरा, a lot of time what happens is if you've read the question incorrectly the first time, say some data point you misinterpret, A and B can complete a piece of work in 8 more days, or A or B can complete the work in 8 days, depending on what the question is saying. आपके आंसर्स पूरे मतलब पाताल लोक स्वर्ग लोक सब कुछ बदल जाएगा उसके अंदर। बट तुम जब when you were solving it in the paper you were solving it at 8 days, now when you're solving it you realize ओ ये 8 more था तो ये बदल गया। यहाँ पे you were not able to solve the question because you have misinterpreted in your first reading, and it happens very usually. आप quant के practice के दौरान भी आप करिए। Let's say there were you picked up a question, you started solving, you were unable to solve, you invested 5, 6, 7 minutes on it, you threw down the book, you threw down your pen, you walked away from it, claimed cat is for losers, I'm never going to prepare for cat again. Then you remembered we don't really have an option, we are one of those losers that cat is made for. You come back, you pick up the book again, you start solving again, and this time you see, oh, एरर ये कर रहे थे हम सवाल के अंदर fx2 पूछा था, हम fx ही निकालने में टाइम लगाए हुए, बिल्कुल गलत होगा मेरा आंसर। But that happened because you had taken a break and you're looking at the question with a fresh set of eyes. If you misread a question and you keep looking at it over and over and over again, you're going to misinterpret that question, and now your time pressure and your panic and all of that becomes extremely high. जैसे ही सवाल अटके, अच्छा टॉपिक हो बुरा टॉपिक हो कुछ भी हो, मस्त भाग जाओ वहां से। There is no point in sticking around on a question on which you are not getting an answer, at least in the first round of answering. In the second round, जब आप when you spent all your time on all questions जिसके अंदर आप समय लगा सकते थे, if everything is done, और फिर तुम्हें इस पे टाइम लगाने का मन है, रिसर्च करने का मन है, डिटेल्ड चलो एक एक स्टेप लिख के सॉल्व करने का मन है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट गो में सवाल नहीं हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ कंफर्टेबल एन एरिया इट इज फॉर यू, भागो वहां से। देयर इज नो पॉइंट इन स्टिकिंग अराउंड एंड doing a question because it is from your strength area, because regardless of what is your strength area and what is your weak area, questions within those areas can be easy or difficult or moderate of all three types. तो भाई लोग, मेरा टॉपिक है इसीलिए हम करेंगे ही करेंगे जो आजकल बहुत स्टूपिड स्टेटमेंट, अभी ये वाला होपफुली सबने थ्योरी सुनी लिया होगा, अलजेब्रा अरिथमेटिक और ज्योमेट्री कर लो, कैट का कम से कम 60% ऑफ द पेपर तो हो ही जाएगा। ये समझिएगा 60% ऑफ द पेपर का मतलब क्या होगा, 72 मार्क्स का होता है क्वांट, नहीं 66 मार्क्स का होता है क्वांट, इसका 70% वुड बी कितना होगा, 6 का 70 पर 4.46.2 होगा, 46 नहीं 60% ही निकालना, हम भी पागल ना, 39.6 होगा, 660 का 39.6 होगा, 39.6 पे समझना स्कोर कितना आ रहा है, 99 पॉइंट समथिंग दुनिया में जा रहे हैं अपने 39.6। दैट इज अज्यूमिंग जो भी सवाल आए तुम उसमें से मैक्सिमम कर लोगे। बस ये देखना पर्सनालिटी टाइप, वंडरफुल पर्सनालिटी टाइप, आप इतने आलसी हैं कि आप नंबर सिस्टम और पीएनसी दो टॉपिक्स छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इतने इंसाइटफुल हैं कि अरिथमेटिक का जो सवाल आया वो करने को तैयार रहेंगे। होने वाला है क्या? दिस इज लाइक द ट्राइड एंड टेस्टेड एंड टाइम एंड टाइम अगेन ओवर द इयर्स देखा है। सारे लोग ये ज्ञान देते हैं कैट से पहले कि ये 3 टॉपिक कर लो चल जाएगा, और फन चीज ये है द 2 टॉपिक्स दैट यू आर इग्नोरिंग they tend to have the easiest questions in CAT related to them. अगर नंबर थ्योरी से सवाल आया तो एकदम लो हैंगिंग फ्रूट रहेगा, एकदम सस्ता वाला। पीएनसी सवाल है एकदम लो हैंगिंग फ्रूट रहेगा, एकदम सस्ता वाला। हर चीज में बेसिक बना के रखिए। इफ यू वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ अलजेब्रा ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बट डू नॉट इग्नोर एनी टॉपिक आउटराइट। पीएनसी अगर आपने एंटायरली छोड़ रखा है, दैट आल्सो ब्लीड्स इनटू आपका डीआईएलआर सॉल्विंग एबिलिटी, बिकॉज़ देयर आर आल्सो डीआईएलआर सेट्स बेस्ड अराउंड पीएनसी। आई डोंट रिमेम्बर 18-19 में था कोई एक फिंगरप्रिंट वाला और एयरलाइंस का हब वाला, देयर आर सो मेनी सेट्स दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीएनसी। अगर आप पीएनसी का टॉपिक छोड़े तो आप डीआईएलआर के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज मार रहे, बट नहीं, 60% तो हो जाता है। अगेन वी विल ओनली लिसन टू थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ इजियर। 2 टॉपिक छोड़ने का एडवाइस मिल रहा है, बेस्ट काम है, मत करो भाई वैसा। थर्ड वाला क्वेश्चन ये समझो, अगर अपने से सवाल सॉल्व नहीं हुआ उस टाइम में, अच्छी बात है, नहीं हुआ, योर फोकस शुड बी इससे हम क्या सीख सकते हैं और आगे बढ़ते। देयर इज नो वे, एज इन क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग हैज टू बी अप्रोप्रिएट। You moving away from a question when you're getting stuck, that has to happen fairly quickly.
Beyond that, there is no other capitalizing techniques or ideas that I can share with you. सीधा सीधा मुद्दा ये रखो, सवाल आ रहा है करेंगे, नहीं आ रहा है चलो भागेंगे, या अगर मेरे को ज्यादा समय लग रहा है तब बाद में आके करेंगे। वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का जो आइडिया, हाउ टू एनालाइज एंड हाउ टू अटेम्प्ट वाला जो वीडियो है, उसके अंदर देख लेना जो भी है कहानी। जनता, प्लीज only focus on controllables. There are certain things that are within our control. Let's only divert and direct our energy towards that. There are certain things that are uncontrollable. In this economy where we live, where attention is a form of a talent. मतलब, for the lack of a better term, ये समझिएगा, we know a lot of people, no? We know a lot of people. If you had to list, क्या बताएं, किम कार्डाशियन या एंड्रू टेट या कौन है और जेनर्स सारे, या लॉट्स ऑफ टिकटॉकर्स, इन लोगों के साथ समझिए, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल टैलेंट्स इज डांसिंग एंड सिंगिंग एंड एक्टिंग एंड बीइंग एबल टू डू कॉम्प्लेक्स स्किल्स, those are no longer the skills on which you thrive in this market. एक आप एक्सेलेंट सिंगर है, जरूरी नहीं है लोग आपको जाने, बट अगर आप यू कैन होल्ड अटेंशन, देन पीपल विल लव यू. We live in an attention economy now, which is why these people have become the sort of celebrities and icons that they have. We could also have examples from our cat industry. Attention hold करना ही तो बेस्ट चीज है. Please do not give away your attention for free. Your attention deserves respect. अपने attention को only if it is useful. अब दिक्कत ये, this is a very circular argument. How do we decide whether it is worth our attention without giving it attention? Trust the historical records. Trust the historical records. अगर कुछ काम का है तो कोई ना कोई कुछ बता ही देगा. मतलब, if people have wasted your time earlier, they will still waste your time. There is no point. Even if you reach that conclusion about preparation parley, तुम्हें नहीं देखने का मन है, क्योंकि I never really definitively answer anything. ठीक है, चलेगा, not a problem. मत देखो, अपना समय बचाओ. If you don't find the discussion or the talk here useful, मत देखो, I don't mind. उससे दिक्कत है ही नहीं जीवन में. जीवन में इस बात से दिक्कत है, तो अपना समय अगर बर्बाद कर रहे, लुकिंग फॉर these are, मतलब यही समझो ना, scores not being consistent, correlation between my cat score और मेरे टेस्ट में सॉल्व नहीं होते, टेस्ट के बाद सॉल्व हो जाते. All of these questions have no answers, and people who are asking these questions, you also know there are no answers, there are no precise answers to these, but we are spending time and energy in finding answers to these questions. क्यों भाई? इंस्टेड थोड़ा समय लगा के एक्स्ट्रा क्वांट का सवाल कर लेते, एक DILR का सेट बना लेते, एक RC पैसेज अटेम्प्ट कर लेते. RC स्पेशली जनता, क्वांट सबसे ज्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि छोटे छोटे सवाल होते हैं, अटेंशन कम लगता है. DILR फिर भी कर लेते थोड़ा बहुत, RC तो जनता करती नहीं, और RC कर भी ले, VA तो भाई साहब, the only practice that people have for VA is बॉक्स के सवाल, और उसके बाद बोलते हैं पैराजम्बल, तो एकदम लक की बात है. हाँ, लक की बात है, बिल्कुल लक की बात है, बट देन यू कैन इंप्रूव योर लक बाय रिपीटेड प्रैक्टिस. डू यू थिंक क्रिकेट में 100 मारना लक की बात नहीं है? बिल्कुल लक की बात है, बट यू कैन इंप्रूव योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग 100 बाय अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, बट आई विल ऑलवेज कॉल इट अ लक की बात. और पैराजम्बल खराब है, और ऑड वन आउट खराब है, और VA के क्वेश्चन खराब. भाई एक बार तुम इनफ एफर्ट तो मार के देखो, उसके बाद देखना अपने आप कुछ इंप्रूवमेंट आएगी आएगी. आज के लिए काफी ज्ञान, रेंटिंग डन. हैव फन. ओके, बाय. सी यू नेक्स्ट वीक. By then I would have also taken my NMAT. Agar there is something interesting or important to share, I will let you know. Otherwise, chill. Okay, bye.